Good morning, dear students. How are you? Today I am going to teach you your third part of the first lesson from your political science book, Political Theory. So, we shall begin today from 1.3, Putting Political Theory to Practice, यानी राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना. Let us discuss this. In this textbook, we confine ourselves to one aspect of political theory, that which deals with the origins, meaning and significance of political ideas that we are familiar with, such as freedom, equality, citizenship, justice, development, nationalism, secularism, and so on. When we begin a debate or argument on any topic, we usually ask, what does it mean and how does it matter? Political theorists have asked, what is freedom or equality, and provided diverse definitions. Unlike in mathematics, where there can be one definition of a triangle or a square, we encounter many definitions of equality or freedom or justice. इस पाठ्यपुस्तक में हमने स्वयं को राजनीतिक सिद्धांत के सिर्फ एक पहलू तक ही सीमित किया था, जिसमें जैसे स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास और राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे बहुत सारे जो सुपरिचित राजनीतिक विचार हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उनका अर्थ क्या है, उनके महत्व के बारे में हमने अध्ययन किया है. हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क आरंभ करते हैं तो अक्सर ये पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है और ये कैसे महत्वपूर्ण होता है. राजनीतिक सिद्धांतकारों ने बताया है कि आज़ादी और समानता क्या है. इसकी विविध परिभाषाएं उन्होंने प्रस्तुत की हैं. समय समय पर अलग अलग जो परिभाषाएं हैं, उनके एक मत नहीं है उस परिभाषाओं को लेकर. वो अपने तरीके से उन्होंने स्वतंत्रता, समानता आदि के बारे में अपनी अलग अलग परिभाषाएं उन्होंने दी हैं. राजनीतिक सिद्धांत हम समानता या आज़ादी या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं. राजनीतिक सिद्धांतकारों ने ये भी बताया है कि आज़ादी और समानता क्या है. अलग अलग परिभाषाएं उन्होंने दी हैं. गणित के विपरीत राजनीतिक शास्त्र में, गणित में जिसमें जहाँ त्रिभुज या वर्ग का क्षेत्रफल या वर्ग से संबंधित एक ही डेफिनेशन होती है कि परिभाषा होती है, राजनीतिक सिद्धांत हम यह समानता, आज़ादी या न्याय के अलग अलग परिभाषाएं प्रदान करता है उनके राजनीतिक विचारकों के तरीके से. This is because terms like equality concern our relationship with other human beings rather than with things. Human beings, unlike things, have opinion on issues like equality, and these opinions need to be understood and harmonized. How do we go about doing things? Let us begin with our common experience of equality in different places. This is because terms like equality concerns our relationships. ऐसा इसलिए है क्योंकि समानता जैसे शब्द हैं जो उनके सरोकार किसी एक वस्तु की बजाय अलग अलग मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है. वस्तुओं के विपरीत जो मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है और इन मतों को समझने और इनसे तालमेल रखने की उसकी ज़रूरत होती है. ऐसा करने की दिशा में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? तो चलिए हम विभिन्न जगहों में समानता से संबंधित जो हमारे सामान्य अनुभव रहे हैं उनसे हम अपनी बातें शुरू करें. You may have noticed that people often jump the queue in shops or doctors' waiting rooms or government offices. Sometimes those who do so are told to get back in line and we feel glad. Sometimes they get ahead, we feel cheated. We resent this because we are paying.
We resent this because we all want equal opportunity to get goods and services for which we are paying. So when we reflect on our experience, we understand that equality means equal opportunity for all. At the same time, if there are separate counters for the old and disabled, we understand that such special treatment may be justified. You may have noticed that people often jump the queue in shops or doctors waiting rooms or government offices. आप कई बार जैसे कोई ऑफिस में गए हैं, किसी दफ्तर में काम करवाने के लिए गए हैं, किसी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गए हैं, बिजली का बिल भरने के लिए गए हैं, तो आपने गौर किया होगा कि लोग अक्सर सरकारी कार्यालयों, डॉक्टर के वेटिंग रूम में या दुकानों में जहाँ पे वो वस्तुएं प्राप्त करने के लिए गए, वहाँ कतार तोड़कर वो आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसे करने वालों को पंक्ति में पीछे जाने के लिए कहा जाता है, भी आप गलत कर रहे हो, आप लाइन में ऐसे तोड़ के आगे नहीं आ सकते, आप पीछे जाइए, अपनी जगह पर जाइए, ऐसा बोला जाता है। जब ऐसा कहा जाता है उनको तो हमें खुशी होती है, कई बार वे आगे निकल जाते हैं और हम वहाँ पे ठगा सा महसूस करते हैं। हम इसका विरोध भी करते हैं कि भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपनी लाइन, अपने समय के हिसाब से, अपने टर्न के हिसाब से, बारी के हिसाब से आपको आगे आना चाहिए, क्योंकि हम जिनके लिए भुगतान करते हैं उन सामानों या सुविधाओं को पाने में हम समान अवसर चाहते हैं। इसलिए जब हम अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं, हम समझते हैं कि समानता का अर्थ है सभी के लिए समान अवसर। भाई जैसा सभी व्यक्ति समान हैं, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, तो कोई किसी को विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हम किसी भी सामान या सुविधाओं को पाने में चाहते हैं, अवसर वहाँ पे हम समानता के अवसर चाहते हैं। इसलिए जब हम अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए एक समान अवसर होता है। फिर भी अगर वृद्धों की बात की जाए या विकलांगों की बात की जाए, डिसेबल्ड पर्सन हैं, ओल्ड एजेस हैं, तो उनके लिए हम चाहते हैं कि उनको अवसर है वो ज़्यादा बेहतर मिले हमसे। तो हम चाहते हैं कि वृद्धों के लिए, विकलांगों के लिए डॉक्टर के पास, सरकारी अस्पतालों में, या फिर कोई बिजली का बिल भरने के लिए, या कोई भी किसी भी जगह पे उनको सुविधाओं के लिए देने के लिए अलग से काउंटर हो, उनका प्रतीक्षालय, उनका वेटिंग रूम अलग से हो। तो हम समझते हैं कि हम कि उनके साथ जो विशेष बर्ताव है जो हम कर रहे हैं वो न्यायोचित है और उनके लिए ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट इज़, but we also notice every day that many poor people cannot go to the shop or to a doctor because they have no money to pay for goods and services. Some of these people could be day laborers who are cutting stones or lugging bricks for long hours. If we are sensitive, we feel that it is not fair that in a society some members cannot even have their basic needs satisfied. We come to realize that equality must involve some kind of fairness so that people are not unduly exploited and disadvantaged by economic factors. लेकिन हम हर रोज़ प्रतिदिन है जो ये भी देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग दुकान या किसी चिकित्सक के पास इसीलिए नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास सामान या सुविधाओं की कीमत चुकाने के लिए रुपए नहीं होते। इनमें से कुछ लोग दैनिक मजदूर होते हैं जो घंटों पत्थर काटते हैं, ईंटें तोड़ते हैं, ईंटें पाथते हैं और बदले में छोटी सी उनको एक वेज है, डे लेबर है, उनको मिलती है। अगर हम संवेदनशील हैं, समाज में सेंसिटिव हैं, हमें पता है मुद्दों का, हमें स्थिति का पता है, तो हम महसूस करते हैं कि यह अनुचित है कि समाज में कुछ सदस्यों की बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही और कुछ लोग समाज के उच्च स्थितियों का आनंद उठा रहे हैं। तब हम इस अनुभव से गुजरते हैं कि समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरती जानी चाहिए ताकि लोग अनुचित रूप से शोषित न हों, एक्सप्लॉइटेड न हों और आर्थिक कारकों की वजह से, आर्थिक कारणों की वजह से, इकोनॉमिक कॉजेज़ की वजह से
प्रतिकूल परिस्थितियों के शिकार न हों। आई होप यू हैव अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज consider the fact that there are many children who cannot go to schools because they have to work to feed themselves. And most girl students in poor households are pulled out of school to care for their younger siblings while parents go to work. Even though the Indian Constitution guarantees the right to primary education for all, the right remains formal. Again, we may feel that the government should do more for such children and their parents so that they are enabled to go to school. Consider the fact, इस बात पर गौर करें, इस बात को समझें कि बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। कारण क्योंकि अपना पेट भरने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। इसी ही तरह बहुत सारी लड़कियां, कम से कम जो लड़कियों में अधिसंख्या है, लड़कियों को स्कूल से इसीलिए हटा दिया जाता है क्योंकि माँ बाप के काम पर जाने के दौरान उन्हें अपने छोटे बहन भाई, अपने सिबलिंग्स, उनकी देखभाल करनी होती है। हालांकि भारतीय संविधान सभी को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की गारंटी देता है कि सभी को पहली से 5वीं तक की शिक्षा अनिवार्य है और सभी को बिना किसी रोक टोक के ये अधिकार दिया गया है, उसको शिक्षा मिलनी अनिवार्य है। लेकिन यह अधिकार मात्र औपचारिक बनकर रह गया, फॉर्मेलिटी बन के रह गया है। फिर हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों और उनके माँ बाप के लिए सरकार को कुछ ज़्यादा ही करना चाहिए ताकि वो स्कूल जा सके। आजकल बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में दी जा रही हैं, जैसे मिड डे मील्स, क्योंकि वो बच्चे जिनको पेट भरने के लिए लाले पड़े होंगे तो वो पढ़ाई के बारे में कैसे सोच सकते हैं। हर एक नया बच्चा परिवार में एक एक्स्ट्रा इनकम का कारण माना जाता है, तो ऐसे बच्चों को स्कूल में कैसे भेजेंगे माँ बाप। ये समस्याएं यहाँ पर हैं हमारे देश में, हमारे भारत में, और संविधान के द्वारा इन समस्याओं का निदान करने के लिए समय समय पर योजनाएं भी बनाई गई हैं, समय समय पर। Thus you may see that our idea of equality is quite complex. When we are in the queue or playground, we want equal opportunity. इस प्रकार हमारे पास समानता की अलग अलग परिभाषाएं होने की वजह से यह समानता अर्थ पर निर्भर करता है। हम उसके अर्थ की शुरुआत जो हमारे लिए है, फिर हमने इसका विस्तार गरीब, वंचित, बूढ़े बुजुर्ग आदि बाकी लोगों के लिए भी किया है। हमने अर्थ की कई परतें खोली हैं। हम पूर्ण रूप से समझें कि बगैर राजनीतिक सिद्धांत जो हम स्थितियां गढ़ते रहे हैं, we suffer from some disability, we want special provisions made when we cannot even afford basic needs. Equal opportunity is not enough. We must be able to go to school or get help through proactive measures such as fair distribution of resources like jobs, decent wages, subsidized hospitals, etc. This requires that some agency be made responsible to ensure fairness. इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समानता के बारे में हमारे विचार काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, जटिल हैं। जब हम एक पंक्ति में होते हैं या खेल के मैदान में होते हैं तो हम समान अवसर चाहते हैं, लेकिन जब हम किसी अक्षमता का शिकार हो जाते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं। लेकिन जब हम बुनियादी ज़रूरतें भी पूरा नहीं कर पाते तब समान अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है। हमें स्कूल जाने या संसाधनों जैसे रोज़गार, सभी को रोज़गार होना ज़रूरी है, अच्छा वेतन होना ज़रूरी है, रियायती अस्पताल आदि होना ज़रूरी है, उसका समुचित बंटवारा हो। जैसे आगे आने के लिए उपायों की सहायता प्राप्त करने में समर्थ बनाया जाना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ
की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी एजेंसी को जिम्मेदार बनाने की ज़रूरत है। So the reason we have many definitions is because the meaning of equality is dependent on the context. We started with what is meant for ourselves and then proceeded to consider the poor, disadvantaged, senior citizens. We discovered many layers of meaning. We have been doing political theory without realizing it. इस प्रकार हमारे पास समानता की अनेक परिभाषाओं के होने का कारण ये है कि समानता का अर्थ हर एक स्थिति पर निर्भर करता है। हमने इसके उस अर्थ से शुरुआत की जो स्वयं हमारे लिए है और फिर हमने इसका विस्तार गरीब, वंचित लोगों, बूढ़े बुजुर्ग लोगों आदि बाकी के लोगों के लिए किया है। हमने अर्थ की कई परतें खोली हैं कि समानता क्या है, उसके अलग अलग अर्थ हमने खोल के देखे हैं। हम पूर्ण रूप से समझ चुके हैं कि बिना समझे बगैर राजनीतिक सिद्धांत ऐसे ही गढ़ते रहे तो इनका कोई मोल, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। Political theories clarify the meaning of political concepts by looking at how they are understood and used in ordinary language. They also debate and examine the diverse meanings and opinions in a systematic manner. When is equality of opportunity enough? When do people need special treatment? How far and how long should such special treatment be given? Should poor children be given midday meals to encourage them to stay in school? These are some questions which they address. As you can see, these issues are eminently practical. They provide guidelines for forming public policies on education and employment. राजनीतिक अवधारणा हैं, विचार हैं, इनके अर्थ को राजनीतिक सिद्धांतकार ये देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में इन्हें कैसे समझा जाना चाहिए, कैसे इनको बरता जाना चाहिए। ये अलग अलग अर्थों और रायों को अपने विचार विमर्श और उनकी जांच पड़ताल के बाद ही सुव्यवस्थित तरीके से रखते हैं। अवसर की समानता कब पर्याप्त होती है, कब लोगों को विशेष बर्ताव करने की ज़रूरत होती है, ऐसा विशेष बर्ताव कब तक और किस हद तक किया जाना चाहिए, क्या गरीब बच्चों को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए। ऐसे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी ओर वे मुखातिब होते हैं। आप भी देख सकते हैं कि ये मसले बिल्कुल व्यवहारिक हैं, बड़े प्रैक्टिकल हैं। वे शिक्षा और रोज़गार के बारे में सार्वजनिक नीतियां तय करने में मार्गदर्शन तय करते हैं, गाइडेंस देते हैं। As in the case of equality, so also in the case of other concepts, political theorists engage with everybody's opinions, debate possible meanings and thresh out policy options. Freedom, citizenship, rights, development, justice, equality, nationalism and secularism are some of the concepts that we will discuss in following chapters. जैसा कि समानता के मामले में है, वैसे ही अन्य विचारों के मामले में भी हैं। समानता, न्याय, स्वतंत्रता, अधिकार, ये अन्य अवधारणाएं हैं, इनके मामले में भी ऐसा ही है। राजनीतिक सिद्धांतकारों को हर रोज़ के विचारों से उलझना पड़ता है, हर रोज़ की समस्याओं से उलझना पड़ता है, अपने मूल्य, अपने विचार वहाँ पे देने पड़ते हैं, आदर्श वहाँ पे निश्चित करने पड़ते हैं, नियम वहाँ पे देने पड़ते हैं, वस्तु विशेष को वस्तु स्थिति के हिसाब से उसको विवेचन विश्लेषण करके एक नया मार्ग प्रस्तुत करना होता है। तो इस तरीके के जो संभावित अर्थ हैं
उन पर विचार विमर्श करते हुए, नीतिगत विकल्पों को सूत्रबद्ध करते हुए आज़ादी, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता आदि कुछ अवधारणाओं पर भी वहाँ वो विचार प्रस्तुत करते हैं। और इसी संबंध में आने वाले जो अध्याय होंगे, आने वाले जो चैप्टर्स होंगे, हम इन्हीं पॉलिटिकल थ्योरीज़ के अलग कंसेप्ट्स हैं जैसे इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, हम स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे, हम विकास सही मायने में सिद्धांतिक रूप से क्या होता है के बारे में पढ़ेंगे, न्याय के सिद्धांत, समानता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के बारे में अगले चैप्टरों में हम डिस्कस करेंगे। That's enough for today, my dear students. We shall take the next part of the present lesson tomorrow. Thank you and have a good day. May Goddess Saraswati bless you with great treasure of knowledge. Thank you.